तो ये था फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं। एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025, ये जो टेबल है ये एग्जिस्टिंग प्रोविजंस और इसमें हुए अमेंडमेंट्स और ओमिशंस के बारे में बताती है। To ensure the effective regulation of the legal profession and to amend the provisions of the Advocates Act 1961 with the aim of modernizing the administration of legal education and the legal profession in India. These amendments seek to address the evolving needs of legal landscape, promote ethical practices and enhance the transparency and accountability of the legal community. By streamlining procedures and introducing necessary reforms, the amendments will better equip legal professionals to meet contemporary challenges. Okay. Be it enacted in the 76th year of Republic of India as follows. Short title and commencement. The Advocates Amendment Bill 2025. It shall be deemed to have come into force on the date of publication in the Official Gazette. Insertion and substitution in section 2. What is section 2? In section 2, the principal act in clause 1a after subclause a following subclause a shall be inserted, namely double a. This is the clause. Advisory board means board of advisor constituted by Bar Council of India for the development of legal education, legal research and legal profession. आफ्टर, अब देखिए ये क्या है, एडवाइजरी बोर्ड को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये होगा अब बोर्ड ऑफ एडवाइज़र। बोर्ड ऑफ एडवाइज़र कौन कौन होंगे? कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीगल एजुकेशन, लीगल रिसर्च एंड लीगल प्रोफेशन। ये है इसकी डेफिनेशन। आफ्टर सब क्लॉज बी फॉलोइंग सब क्लॉज डबल बी शैल बी इंसर्टेड, नेमली बार एसोसिएशन मीन्स एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स रजिस्टर्ड विद द स्टेट बार काउंसिल्स और Bar Councils of India as the case may be, and includes such association at the level of Supreme Court, High Courts and District Court and below, tribunals and quasi-judicial forums. This the definition है Bar Association की। After subclause E, following subclause double E shall be inserted, namely Bar Examination। अब Bar Examination को भी define कर दिया है। Bar examination means any examination or test, including the All India Bar Examination prescribed by Bar Council of India for enrollment of a law graduate as an advocate or for his continuance in practice of law as an advocate after his enrollment under the provision of this act. Bar examination All India Bar Examination कराती है, लेकिन यहाँ का है एनी एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग AIBE, तो इसमें यह है कि और भी बार एग्जामिनेशंस का प्रोविज़न हो सकता है, ठीक है। आफ्टर सब क्लॉज ई फॉलोइंग सब क्लॉज डबल एफ शैल बी इंसर्टेड, नेमली सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन मीन्स इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया इम्पार्टिंग एजुकेशन एक्सक्लूसिवली इन द फील्ड ऑफ लॉ। ई फॉर क्लॉज एच द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी सब्सटीट्यूटेड। अब इसमें क्या है, सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन की को डिफ़ाइन किया हुआ है। ये इंस्टीट्यूशन होगा, ये रिकॉग्नाइज्ड होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से और ये एक्सक्लूसिवली लॉ की फील्ड में एजुकेशन प्रोवाइड करने के फील्ड में काम करेगा। लॉ ग्रेजुएट को डिफाइन किया है। लॉ ग्रेजुएट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन्ड अ बैचलर्स डिग्री इन लॉ of 3 or 5 years of such duration as prescribed from any center of legal education or university established by law or a college affiliated to any university and recognized by Bar Council of India। ये definitions तो काफ़ी प्रिसाइज हैं एंड ये पॉजिटिव स्टेप कहा जा सकता है। लॉ ग्रेजुएट को इन्होंने डिफ़ाइन कर दिया, इन्होंने सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन डिफ़ाइन किया है, बार एग्जामिनेशन को किया हुआ है। अब आगे देखिए 2I में लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन है। ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है। लीगल प्रैक्टिशनर मीन्स एनी एडवोकेट और लॉ ग्रेजुएट एंगेज्ड इन प्रैक्टिस ऑफ लॉ बिफोर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स और क्वाजी जुडिशियल फोरम्स और डूइंग लीगल वर्क इन एनी प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनोमस बॉडीज़, डोमेस्टिक एंड फॉरेन लॉ फर्म्स एंड कॉरपोरेट एंटिटीज़।
ये बहुत ब्रॉडन कर दी है डेफिनेशन। अब देखिए, लीगल प्रैक्टिशनर कौन होगा? एनी एडवोकेट। एडवोकेट पहले एडवोकेट ही लीगल प्रैक्टिशनर होते थे, लेकिन अभी ये है कि लीगल प्रैक्टिशनर हो गया एडवोकेट और लॉ ग्रेजुएट एंगेज्ड इन प्रैक्टिस ऑफ लॉ बिफोर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स और क्वाज़ी जुडिशियल फोरम्स और डूइंग लीगल वर्क इन एनी प्राइवेट। तो इन हाउस काउंसिल जो है, कॉरपोरेट लॉयर्स जो हैं, या किसी और कैपेसिटी में लीगल रिप्रेजेंटेशन अगर वो प्रोवाइड करते हैं और लॉ ग्रेजुएट हैं, तो दे शैल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर, including foreign law firms and corporate entities। तब ये कॉरपोरेट को एंट्री दे रहे हैं लीगल प्रैक्टिस में, डोमेस्टिक एंड फॉरेन लॉ फर्म्स। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द रिमूवल ऑफ डाउट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज लीगल प्रैक्टिशनर इशूड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल्स एंड बार एसोसिएशंस, courts, tribunals, quasi-judicial forums, or issued by any private or public organization, including but not limited to domestic and foreign law firms and corporate entities, shall be prima facie a proof of such legal practice। इतना कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता क्या है? ये बड़ा डेलिबरेट चॉइस ऑफ वर्ड है इनका। An experience certificate as legal practitioner issued by respective state bar councils and bar associations, courts, tribunals, quasi-judicial forums, or issued by any private or public organization, including but not limited to domestic and foreign law firms and corporate entities, shall be prima facie a proof of such legal practice। ठीक है, एक जैसे अभी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बनता है, वही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इनको चाहिए होगा, तो ये लीगल प्रैक्टिशनर हो जाएंगे। द बार काउंसिल्स शैल बी एट लिबर्टी टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सेम इन ईदर केस अपॉन रिसीप्ट ऑफ एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग द सेम। अगर इनको कंप्लेंट मिलेगी तो उसको वेरीफाई कर देंगे, और कंप्लेंट नहीं मिलेगी तो वो प्राइमा फेसी ऑथेंटिकेटेड माना जाएगा। After subclause I, following subclause IA shall be inserted, namely misconduct। अब बहुत सही, misconduct भी डिफाइन कर दिया। चलिए, misconduct means an act or omission by an advocate which constitutes breach or non-observation of standards of conduct expected from an advocate prescribed by any regulation made by Bar Council of India। ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सब्जेक्टिव मैटर है बहुत ज़्यादा। व्हाट डू यू मीन द स्टैंडर्ड कंडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एडवोकेट? व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड कंडक्ट? हु डिसाइड द स्टैंडर्ड कंडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एडवोकेट? ठीक है, एंड इन्होंने जवाब दे दिया इसका। रेटोरिकल क्वेश्चन तो है नहीं। इन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कहा है वो रेगुलेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखिए, आफ्टर सब क्लॉज फॉलोइंग सब क्लॉज शैल बी इंसर्टेड, नेमली। देखिए, मेरा ये जो इस मिसकंडक्ट पे जो मेरा अभी आउटबर्स्ट था, उसकी वजह ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में भी चेंज हुआ है, जो मैं पहले से थोड़ा बहुत पढ़ चुका हूँ। वो आगे पढ़ेंगे तो ये कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मीन्स and includes periodic verification of certificate, place of practice, and other details of credentials of the advocates to be issued by state bar councils as per regulations prescribed by BCI। fully supported। एकदम सही बात है, ये होना चाहिए डेफिनेटली 100%। हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारा प्रोफेशन साफ़ सुथरा रहे और हम अपना काम ठीक से कर सकें, जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, टू इंश्योर दैट रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स। तो हम खुद भी चाहते हैं कि हम एज अ प्रैक्टिशनर जो अपना बेस्ट दे सकते हैं सोसाइटी को, वो दें और कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। जैसा कि कहा, कंट्रीब्यूट करना है डेवलपमेंट ऑफ द नेशन के लिए। ओके, बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।